Hi, good evening everyone. Namaskar. My name is Nitika Bhola from Vikramaditya Academy. How are you everyone? Thank you, and hope you're all doing fine and preparing good for your exam, right? So again, I've come up with this video, confusing words for you, just to have more knowledge of vocabulary, because vocabulary is again very important for competition level exams. Because बहुत कुछ आता है vocabulary से, antonyms, synonyms, homophones, and maybe a lot of confusing words also. So let's understand these confusing words, right? So I'm just going to explain you these words. So last and latest. So what is the difference? Last means final and latest means most recent, right? One word is moral and one is morale. So morale is state of spirit and moral is lesson. So in many times we have heard this word, moral of the story and morale, that my morale has got down, right? I'm sure आपने सुना होगा ना, that my morale has got down. So what is the moral of the story? So moral and morale has a difference, right? So morale means state of spirit, right? So spirit, it's a feeling inside us. We can also call it morale, a abstract noun, है ना? And the next one is moral story. So जब हम कोई story पढ़ते हैं और उसके बाद उसका क्या conclusion निकलता, that is moral. Peak and peak. So peak means top of any mountain or maybe anything. And pick is provoke or arouse. So provoke मतलब किसी चीज को उकसाना, provoke करना, that is peak. Poison if we inhale, and venom when something is injected. So something we inhale. So देखो दोनों का meaning same है. Inhale का मतलब भी अंदर लेना होता है, inject का मतलब भी अंदर लेना होता है, but दोनों में difference क्या है? Poison means when we inhale, so inhale through maybe nose, through mouth, but injected matlab injected through a maybe medical any device or something, right? So there's a difference. Poor and poor. So poor means having no money, financial crisis, and poor month means putting, right? So putting matlab pouring some water, it means putting some water. Pouring something into glass or something, that is pouring, right? Pray and pray. So many times we've heard in stories also that a tiger found its prey. So prey means shikar, right? An animal that is hunted, the animal which is hunted to have the food is prey. So prey का हिंदी meaning होता है शिकार, and pray means prayers. हाँ, जब हम कुछ भगवान से प्रे करते हैं, गॉड से प्रे करते हैं, so asking something to God. Remember, think of a memory. So when we think something, when we memorize something is remember, but reminder is when we make notes, or maybe keep something of that is alerts or something. फोन में करते हैं ना, हम बहुत सारे alerts रखते हैं अपने पास कि 5 o'clock मुझे स्पोर्ट्स के लिए जाना है या 2 o'clock मुझे पढ़ाई करनी है. So we call it reminder. Review means to examine something, right? देखना, to review, and revise means correction of errors. So revise means कि आप you know something, but still there's a chances of having mistake. So revise means to correct, to again read it or write it, whatever errors you have. Sell is a verb. देखो sell और sale दोनों में क्या फर्क होता है? Sell is an action, sell करना, right? So selling is a verb and sale is a noun, right? So sale जो है वो sale एक particular किसी उसको name दिया गया है, so it actually क्या हमें represent करता है? noun. So sale का मतलब भी क्या होता है कि सेल लगी है वहां पे, लेट्स गो टू दैट सेल. सो सेल इज नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ सेलिंग. हाँ, जब आप कुछ सेल कर रहे होते हैं, अच्छा डिस्काउंट्स पे सेल कर रहे होते हैं, तो उस पूरे प्रोसीजर को आपने क्या नेम दे दिया है? सेल दे दिया. तो सेल कम्स इन नाउन एंड सेल मीन्स
to sell something to anybody, you know, that is a verb, right? So let's move further. So next is accident. So accident means bad event. कोई भी you know traffic accident हो जाता है, कोई भी accident हो जाता है, bad event is called accident. And incident, any event. So there's a difference. बहुत सारे लोग गलत बोल देते हैं accident और incident. So incident मतलब कोई घटना, right? लेकिन बुरी घटना को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Accident. So averse और adverse. So averse होता है जब आप किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, you're describing a situation, you're describing an incident, तो वो क्या होता है? averse होता है. But adverse होता है a opposite situation. So ये मेरे इस अभी जो मेरा टाइम है, this time is going adversely, you know, ये बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है कि जो मैं सोच रही हूँ. So adverse situation को बिल्कुल एकदम ऑपोजिट सिचुएशन को बोलते हैं adverse. Already, अब देखिए already एक अलग वर्ड है और already एक वर्ड है. So already, two words, right? Already and already. So already मतलब everything is ready, everything is just prepared, right? And already एक वर्ड है जो कि already happened earlier. For example, I'll just maybe explain you through example that I'm already late. मैं पहले से ही late हूँ. So it has happened earlier. I'm already late. हाँ, पहले से ही हो चुका है कि मैं late हूँ. It's confirmed. But everything is ready that I am ready. All things are ready means everything is ready. Alter and alter. So there's a difference between alter or, you know, the sound also similar, the pronunciation also, you know, sounds similar to you, but has different meanings. So alter and alter. So place of religious ceremony. So alter, see ये जो alter है, it's a place where we perform religious ceremonies. And this alter means चेंज. हम जाते हैं ना ऑल्ट्रेशन के लिए, किसी बुटीक में जाते हैं कि मेरा ये ड्रेस जो है वो थोड़ा सा छोटा लंबा हो गया है, so वो होता है alter. So alter is to change the maybe size or measurement of the dress, so that is alteration. Appraise or apprise. So what is the difference? Appraise, APPRAISE. So appraise means to elevate, हाँ, to go up. अप्रेज बोलते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना अप्रेजल हो गया, तो अप्रेज से ही बना है अप्रेजल, राइट? सो अप्रेजल मीन्स टू एलिवेट. एलिवेट मतलब ऊपर बढ़ना, टू गो अप, राइट? एंड अप्राइज का मतलब होता है किसी को नोटिफिकेशन देना, किसी को आप इंफॉर्मेशन देना. सो आपने देखा होगा कि जनरली जो ये वर्ड है अप्राइज, ये कहाँ पे होता है? लॉ फर्म्स में बहुत यूज किया जाता है, लेटर्स में बहुत यूज किया जाता है, बिकॉज जनरली अप्राइज का जो मीनिंग होता है टू इन्फॉर्म, टू नोटिफाई, राइट? नेक्स्ट वन इज एश्योर और इंश्योर. सो एश्योर का मतलब क्या होता है? कोई भी रिमूविंग डाउट्स, एंजाइटी, हाँ, सो दैट इज एश्योर. So assure means you're giving assurance to someone. So assure से assurance बनाए और you know removing someone's doubt. अगर कोई प्रॉब्लम में है, कोई किसी सिचुएशन में फंसा है, तो वहाँ पे बहुत सारे डाउट होते हैं, घबराहट होती है, एंजाइटी होती है. एंजाइटी इज व्हाट दैट घबराहट, यू आर इन सच अ सिचुएशन. सो assure मतलब you're assuring someone, you're making sure that person, you're removing the doubts and making that person's mind positive, right? And insure का मतलब होता है you know like insure से बना है insurance, you know paying for any damage which has happened. हाँ, आप किसी को डैमेज हो जाता है तो उसका पे करने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है इंश्योर. तो इंश्योर मतलब कोई लॉस या डैमेज के लिए पे करना, और इसलिए इंश्योर से बना है इंश्योरेंस, राइट? नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंस. लुक एट द स्पेलिंग डिफरेंस. It's DANT and it is DENT. So what is the difference between all these words? So ये जो CONFIDANT है, इसका मीनिंग होता है सेल्फ ट्रस्ट. सो कॉन्फिडेंट मतलब सेल्फ ट्रस्ट. I have lot of trust in me. I'm so confident on me, right? And another word is confident. So I'm feeling good about the outcomes. हाँ, so that good feeling when you have बाहर से आपको जो गुड फीलिंग्स आती है उसके लिए COFIDENT होता है. एंड अगर आप अपने आप में खुद से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, सो दैट इज CONFIDANT, कॉन्फिडेंट, राइट?
सो अनदर वर्ड इज बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब देखो ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत आता है, BSIDE, बिसाइड मतलब जिसमें एस नहीं है, और एक होता है बिसाइड्स। बट आप देखिए दोनों के बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, प्रेपोजिशन है ना, हाँ, तो बिल्कुल हमारे कोई नेक्स्ट टू कोई चीज है, कोई बैठा है, सो वी यूज बिसाइड। बट इफ आई टॉक अबाउट बिसाइड्स, सो बिसाइड मीन्स इन एडिशन टू। सो बिसाइड्स having maybe long hours of work, she is working hard towards her exam. So besides, and uske साथ साथ, in addition to, she is doing this, right? So this is the difference. So beside is one of the preposition, और beside और besides में यही difference होता है. One beside means next to, we are just talking about the preposition, and besides means in addition to, right? I hope this is clear to you. Next is टेम्परेंस। टेम्परेंस और टेम्परामेंट में क्या फर्क है? तो टेम्परेंस और टेम्परामेंट में क्या फर्क है? सो टेम्परेंस मीन्स मॉडरेशन, व्हेन मॉडरेट का मतलब समझते हो ना, ज्यादा ना का, मॉडरेट, राइट? एंड टेम्परामेंट का मतलब होता है डिस्पोजिशन, डिस्पोज करना, डिस्पोज से डिस्पोजिशन बना है, राइट? देन वी हैव रेग्रेट। सो रेग्रेट व्हेन वी फील ग्रीव ऑफ एनीथिंग, कि अरे मुझसे गलत हो गया। सो एक्चुअली रेग्रेट क्या होता है कि हम कोई चीज कर देते हैं और उसके बाद हमें बहुत सैड फील होता है, बहुत दुख फील होता है, बहुत ग्रीव फील होता है, अरे ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, मुझसे गलती होगी। सो दैट इज रेग्रेट। सो दिस फीलिंग इज कॉल्ड रेग्रेट, राइट? सोरो, सो पेन ऑफ माइंड। सोरो इज अगेन अ फीलिंग वेयरइन वी फील लॉट ऑफ पेन इन आवर माइंड, इज सोरो, राइट? एंड फ्लैग्रेंट का मतलब होता है ग्लेयरिंग। सो एंड फ्लैग्रेंट और फ्रेग्रेंट में क्या फर्क है? सो फ्रेग्रेंट मतलब स्वीट, हाँ, स्वीट। जब आप कुछ को बहुत अच्छा प्यारा प्यारा सा और बहुत ही स्वीट सा आपको फ्रेग्रेंस मिलता है, उसको फ्रेग्रेंट बोलते हैं, ठीक है? बट फ्लैग्रेंट क्या होता है? ग्लेयरिंग होता है, राइट? अनदर वर्ड इज विच। विच का मतलब क्या होता है? यू नो ऑल। विच मतलब चुड़ैल, हाँ, वैसे यहाँ पे लिखा है सॉर्सेस, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे? चुड़ैल। आप सबको पता है विचेस क्या होती है, राइट? और एक विच होता है क्वेश्चन के लिए, व्हाट, हाँ, व्हाट वन, राइट? एक्सीडेंट मीन्स बैड इवेंट, एंड इंसिडेंट मीन, मैंने आपको पहले ही बताया, एक्सीडेंट मीन्स बैड इवेंट, एंड इंसिडेंट मीन्स अगेन अगेन कम दिस वर्ड। अलाउड मीन्स परमिटेड, एंड अलाउड मीन्स क्लियरली heard, right? So allowed मतलब परमिशन, आप किसी को परमिशन देते हो, that is allowed. And allowed means, allowed means clearly heard, just so loud that everyone can hear you, right? So are you clear with which? So it's sorceress, which means what one, accident means bad event, incident means any event, allowed permitted, and allowed is clearly heard. Let's move further. Next is last or latest. So I think we have already done. I think there's some writing or maybe typing error. This word has again come, last and latest. Then we have confident. Yes. Another word we have ascendant, means rising star, rising, maybe our work is growing, so rising matlab badna, growth. And ascendancy means controlling influence. So if somebody is under some influence, so we are controlling that, so that is called ascendancy. And simulate means to pretend. What to pretend? To be what one is not. So what is pretend करना होता क्या है? जो हम नहीं होते हैं लेकिन शो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शो ऑफ। हमारी सोसाइटी में सुना होगा ना, हम इस वर्ड का बहुत यूज करते हैं कि वो शो ऑफ कर रही है, शी इज ट्राइंग टू प्रिटेंड, राइट? सो प्रिटेंड मीन्स हम वो नहीं है लेकिन शो ऑफ कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाट इज सिमुलेट। उसके बाद डिसिमुलेट का मतलब क्या होता है? टू हाइड समथिंग, ठीक है? बिकॉज ये इसका क्या है? एंटोनिम है। आप देखिए सिमुलेट एंड डिसिमुलेट दोनों ही आपस में एंटोनिम्स हैं, क्योंकि उसका मतलब होता है जो हम हैं, जो हम नहीं हैं वो हम प्रिटेंड कर रहे हैं, टू प्रिटेंड समथिंग बट वी आर नॉट, राइट? बट इसका मीनिंग होता है डिसिमुलेट का टू हाइड, यानी कि जो हम हैं
ऑलरेडी हम हैं लेकिन हम उसे शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, हम उसे हाइड कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज ऑपोजिट. सो नेग्लेक्ट का मतलब होता है when we ignore. neglect means ignore or maybe willful omission of duty, यानी कि जो भी हमारे काम है, जो भी हमारी responsibilities को जब हम ignore करते हैं is neglect. and negligence होता है habit, यानी neglect हम जिस चीज को कर रहे हैं, action. neglect क्या है? to ignore is an action but negligence is our tendency. हाँ, to tendency, it's our tendency or habit to ignore anything, right? So next is, sorry, yeah. So next is excite and incite. तो एक्साइट का मतलब होता है टू स्टिर अप, पता है ना? एक्साइटमेंट सबने सुना होगा, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, जॉय. सो दिस इज व्हाट, राइट? लेकिन उसको उसका मीनिंग हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, टू स्टिर अप, टू यू नो फील इट जॉय. इंसाइट का मतलब होता है टू मूव द माइंड. हाँ, when your mind is active, so to move the mind to the action is called insight. हाँ, सीनरी एंड साइट. और सीनरी और साइट में क्या डिफरेंस होता है? जब आप किसी एक पर्टिकुलर पूरे व्यू को अपने सामने देखते हो, वी कॉल इट सीनरी. बट साइट क्या होता है? अ थिंग विच इज सीन. हाँ, जो सामने आपको दिख रही है, ठीक है, कोई भी चीज, एग्जैक्टली व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू इज साइट. एंड सीनरी मतलब अ पूरा पिक्चर, अ व्यू इज कॉल्ड सीनरी ऑफ दैट, राइट? सो इम्यूनिटी एंड इम्प्यूनिटी, दोनों में क्या फर्क है? So immunity not liable to infection, and immunity मतलब you know that is something wherein we can fight with any of the infection. जब हम किसी भी infection से fight कर सकते हैं, it means वो हमारी क्या होती है? immunity होती है, that strength, right? and immunity क्या होती है? हमारी body में होती है, because हमारी अगर immunity strong है, we can easily fight any of the infection, right? impunity क्या होती है? freedom from punishment, right? So when you are free, when you are you know free or you get freedom from punishment is impunity, right? ये भी हमारा जो है वो लॉ का एक वर्ड है, जो कि अक्सर जो है लॉयर्स की बुक्स में आपको मिलेगा, या कुछ ऐसे वर्ड जो हैं आपको जो भी लॉयर्स के जस्टिस के जो बुक्स हैं उनमें आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं. केपेबल एंड कैपेशियस. सो केपेबल तो आपको पता है क्या होता है, मैं बहुत ये वर्ड यूज करती हूँ, केपेबल. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड. केपेबल मीन्स वी आर able to do anything at any situation, we do not give up, that is capable. So having ability or any skill to do is capable. मतलब हमारे अंदर स्किल और एबिलिटी होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, so that is capable, right? and capacious क्या होता है? roomy. roomy मतलब roomy is you know when we have you know something, you know we are using any space or something related to that. ब्रेक एंड ब्रेक. सो ब्रेक इज टू स्टॉप कोई भी व्हीकल होती है, उनको स्टॉप करने के लिए ब्रेक का यूज किया जाता है, डिवाइस को यूज किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक बोलते हैं. कार्स में हम लोग यूज करते हैं, बाइक्स में हम लोग यूज करते हैं. ब्रेक मतलब टू स्प्लिट या तोड़ देना, सो दैट इज ब्रेक, राइट? सो लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट इज टिमिड एंड कवार्डली. सो व्हाट इज द डिफरेंस? सो टिमिड क्या होता है? फेयरफुल. फेयरफुल को क्या बोलते हैं? टिमिड बोलते हैं. बहुत डरा हुआ सा, एंड यू नो somebody who is not confident and have lot of anxiety is called timid, right? और जिसको हमेशा, इसको वांटिंग भी क्यों मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है? बिकॉज पीपल हु आर डिपेंडेंट आर टिमिड. हाँ, क्योंकि जो डिपेंडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, सो दे आर ऑलवेज लाइक you know they do not have their own confidence, they do not feel that they're capable, they're always dependent और wanting होते हैं. वो दूसरों पे हमेशा वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ ढूंढते हैं? बाहर. हाँ, they always dependent on others. Cowardly means, what is the meaning of cowardly? So it means you know a person who is not brave, a person who is not you know confident, a person who is not fearless. हाँ, कायर लोगों को बोलते हैं हम cowardly, right? And luxuriant कौन से होते हैं? who are rich in growth. हाँ, जो कि बहुत ही रिच होते हैं ग्रोथ में, you know they keep growing and keep you know getting lot of expansion are called luxurious. एंड लग्जीरियंट और लग्जीरियस में क्या फर्क है? गिवन टू लग्जरी. सो गिवन टू लग्जरी मतलब कोई चीज हमारे सामने है, यू नो अ पर्सन इज सो लग्जूरियस, इट मीन्स दैट पर्सन हैज लॉट ऑफ लग्जरी थिंग्स, लॉट ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स, राइट? सो वी आर एक्सपोजर टू, व्हेन एनी पर्सन हैज एक्सपोजर टू लग्जरी इज लग्जूरियस. नाउ वी हैव collusion and collision. So collision means clash. Clash मतलब clash or maybe difference of views, that is clash.
right? Another word is collusion means a agreement, a secret agreement को बोलते हैं what? Collusion to deceive, right? Another word is gentle. Gentle means polite, sweet, right? And genteel बोलते हैं well bred. ये ध्यान रखना, जेंटील और जेंटल की स्पेलिंग में और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट लुक सिमिलर. सो पोलाइट इज जेंटल एंड जेंटील मतलब वेल ब्रेड, राइट? ये ब्रेड का फॉर्म है. कैपिटल और कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है? कैपिटल इज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल, ठीक है? कैपिटल होता है सिटी या वेल्थ के लिए. हमारे पास कितनी कैपिटल है? कैपिटल का मतलब कि हमारे पास, देखो कैपिटल सिटी को भी बोलते हैं, जैसे कि कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज दिल्ली, राइट? उसी तरीके से एक तो कैपिटल का वहां यूज होता है, दूसरा कैपिटल हमारी वेल्थ को भी बोला जाता है कि हमारे पास कितना पैसा, कितनी ज्वेलरी, कितना लैंड एरिया है, राइट? बट अगर हम कैपिटल की बात करें तो उसकी सेंस आती है बिल्डिंग्स के लिए, हम इस वर्ड का यूज करते हैं. देन वी हैव ऑल्टर, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है. I'm so sorry, the words are coming again and again, so it's a repetition because of some maybe typing error, right? Then another word is fourth and fourth. ये भी बहुत आपने देखा होगा, it's a very common confusion between these two words. So एक है हमारा FOURTH fourth. So ये वाला fourth है नंबर 4, है ना? ये तो सबको पता है. और ये वाला जो fourth होता है forward, हाँ? So फोर्थ का यूज होता है जब हम कोई फॉरवर्ड वाला सेंटेंस यूज करते हैं, वहां पे हम फोर्थ का यूज करते हैं, यू नो दैट कमिंग फॉरवर्ड, ठीक है? कॉन्फिडेंट आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू. देन वी हैव गुड और वेल. गुड का मतलब होता है, गुड इज एक्चुअली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों का मीनिंग सेम होता है. वेल का मतलब भी अच्छा ही होता है, गुड का मतलब भी अच्छा ही होता है, लेकिन गुड जो है वो एडजेक्टिव है और वेल जो है वो एडवर्ब है. अब आप सोच रहे होंगे एडजेक्टिव एडवर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आपको कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर कर दूं. यहाँ पे क्विक कंफ्यूजन कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं, किसको एक्सप्रेस करते हैं? उनकी क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? और जो एडवर्ब्स होते हैं वो एक्शन की क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं. सो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव्स, और जो एक्शन यानी कि जो मेन वर्ब होती है उसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस करने वाले एडवर्ब्स. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब, राइट? Now another word we have trifling and trivial. So trifling का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देते हो, हाँ? जैसे किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते या उसको कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिफलिंग. अ पर्सन विद अ स्मॉल इंपॉर्टेंस और मे बी स्मॉल लाइक वेरी लेस वैल्यू. ट्रेवल का मतलब होता है जो कि एक जो कोई भी चीज है, थिंग है, स्मॉल इन साइज. तो देखो, एक तो आप साइज की बात कर रहे, तो ट्रैवल में साइज की बात हो रही है, यानी कि जो कि स्मॉल साइज में है, राइट? और ट्रिफलिंग का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यानी कि वैल्यूज को आप जो है कम ज्यादा लेवल पे नाप रहे हो. सो दिस इज द डिफरेंस, बट इनके सिमिलर मीनिंग होते हैं. टेम्परेरी और टेम्पोरल. सो टेम्परेरी का मतलब होता है कोई चीज जो कि परमानेंट नहीं है, ठीक है? लॉन्ग रन में नहीं चल सकती, आज है कल खत्म हो जाएगी, दैट इज टेम्परेरी, राइट? एंड टेम्पोरल का मतलब होता है वर्ल्डली. वर्ल्डली इश्यूज चल रहे हैं, वर्ल्डली अफेयर्स क्या हैं, तो वो क्या बोलेंगे हम? ये बोलेंगे टेम्पोरल. सो टेम्पोरल इज अ सिनोनिम ऑफ वर्ल्डली. नेक्स्ट इज तो अनदर वर्ड इज persecute एंड prosecute. persecute का मतलब क्या होता है? सजा, हाँ? जैसे कि किसी को सजा मिली है, डेथ सेंटेंस, हाँ, सर काटना है, सो दैट इज परसिक्यूशन. सो persecute का मतलब होता है टू harass someone, किसी को पनिशमेंट देना, किसी को तंग करना, दैट इज persecute. एंड prosecute होता है जो कि एक पर्सन होता है, विटनेस होता है, जिसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है किसी को बचाने के लिए या किसी को फंसाने के लिए, ठीक है? उसको बोलते हैं prosecute. कहते हैं ना पब्लिक प्रोसिक्यूट है, राइट? ओके. लोनली आप सबको पता है, लोनली मतलब अकेला, हाँ, forsaken, राइट? एंड सोलिटरी मतलब होता है अलोन. देखो, दोनों का मतलब ही सेम होता है, सोलिटरी भी अलोन होता है, लोनली भी अलोन ही होता, बट forsaken होता, दोनों का सिमिलर मीनिंग होता है. सी एंड विटनेस. तो सी का मतलब जब आप अपनी आंखों से कुछ देखते हो बिल्कुल सामने, सो दैट इज सी. बट विटनेस का मतलब होता है कि विटनेस से
अपनी आंखों के सामने देखा है बट उस वक्त नहीं देखा, हम उसको यूज करते हैं एज अ पर्सन, यू नो, जिससे कि पूरा इंसिडेंट को के बारे में उसको जानकारी है, राइट। सो सी और विटनेस में क्या डिफरेंस होता है? हेल्थफुल और हेल्दी। सो हेल्थफुल का मतलब होता है कंड्यूसिव टू हेल्थ, हाँ, एंड हेल्दी का मतलब समवन हु इज एंजॉयिंग दी हेल्दी लाइफ। समझ में आ गया? सो दिस इज द डिफरेंस। एंड कॉम्प्लीमेंट और कंप्लीमेंट का क्या फर्क है? सो कॉम्प्लीमेंट मतलब पॉजिटिव कमेंट, कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, पॉजिटिवली कमेंट दे रहा है, सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट, कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आज आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया आपने, राइट। एंड कॉम्प्लीमेंट होता है जब दो चीजें एक साथ आ जाती है। तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दो कपल जा रहे हैं, सॉरी वन कपल जा रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो दोनों जब साथ साथ जा रहे हैं तो उनको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट, COMPLE, MENT, कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों को साथ साथ, यानी कि इसमें जब दो चीजें साथ होती हैं, ठीक है, और साथ हम उन्हें कुछ कहते हैं, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट। और एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट होता है कि दोनों ही, यू नो, हस्बैंड वाइफ में से अगर आप किसी एक पर्सन की तारीफ कर देते हो, लुकिंग सो गॉर्जियस, सो वो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज द डिफरेंस, राइट। So thank you so much with this video. I hope that you've got clear idea that confusions क्या है word के बीच में. And I hope you've got the meaning also of these words, right? And I keep, you know, sharing such type of videos for you so that you will have very good vocabulary, understanding, and I think through this video your confusion has been just gone away, right? So thank you so much once again. Keep smiling and all the best. Keep preparing yourself for RIMC exam. All the best to everyone. Bye bye.